See the next point over here. I'd explain you. Okay, there is an effect of pressure and temperature, but why? I have not explained. Now we have to study that. Okay, that's the again most important topic. Why? Okay, the reason. The real gas shows deviation from ideal gas behavior. Why? Because out of the assumptions made in kinetic theory of gases, two are not proper. When they had made certain assumptions for the kinetic theory of gases, there were two assumptions which they didn't make proper. Which are those things? The first thing they said, the force of attraction between gaseous molecules is negligible. What they said here, suppose if we have a container, in this container we have gaseous molecules, and they say between these gaseous molecules the force of attraction which they attract each other is very less. That's what they say. But this assumption is wrong. This assumption is wrong. Why wrong? I'm going to explain. Second assumption, the volume of molecule is negligible, which can be avoided compared to total volume of gas. They say the volume of this molecule is very less compared to the total volume occupied by the gas. These two assumptions are wrong. Okay, why they are wrong? Let me explain. And how does these two assumptions? How do these two assumptions? They are going to make an impact on pressure and on temperature. Because हमको इफेक्ट देख दो जगह देखने को मिलती, एक प्रेशर पे दूसरा टेम्परेचर पे. तो कहाँ पे अलग है? लेट मी शो यू. सी सपोज हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है वो सेंटर में है. ओके, तो एक्चुअली पहली चीज उनका जो पहला एसम्पशन था, देयर इज नो अट्रैक्शन, वो रॉन्ग ही है. क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इसलिए अगर इसके बीच में अट्रैक्शन होता ही नहीं तो आप प्रेशर जब गैस पे लगाते हो या तो टेम्परेचर कम करते हो तो वो लिक्विड कैसे बनेगा? इफ देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, आप प्रेशर लगा तो एक दूसरे से ज्वाइन होगा ही नहीं, लिक्विड बनेगा ही नहीं. इफ देयर इज नो अट्रैक्शन, since there is an attraction, that's why it can be easily liquefied by applying pressure or by decreasing temperature. उन्हें जो पहला assumption था वो उनका wrong है. Okay? And same way liquid can be converted into solid by decreasing temperature. So the पहला point वो बता रहे थे हमको. Now, if the assumption 1 is correct, then there is a negligible force of attraction. By cooling or compressing, by the effect of pressure, the molecules will never be arranged so close to each other, and hence the liquefaction of gas is not possible. If assumption 1 is correct, then the liquefaction is not possible. But हम तो day to day life में देखते हैं कि gas can be easily liquefied. It can be liquefied बराबर by applying pressure by decreasing temperature. Similarly, liquid cannot be converted into solid by effect of temperature or pressure, but it does take. तो क्यों? उनका गलती कहाँ पे? जरा ध्यान से देखो. यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम. जब उन्होंने एजम्पशन लिया तो इसके बेस पे लिया था. उनके पास एक मॉलिक्यूल जो था चारों ओर सेंटर से जुड़ा हुआ था. तो जब टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, इस तरफ भी 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 आता है, चारों ओर से आता है, टोटल क्या बन जाता है? जीरो. सिंस चारों ओर से इक्वली आता है तो जीरो बन जाता है, इसलिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनविजिबल है. नो इश्यू, नो प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम कहाँ पे? जैसे ही ये मॉलिक्यूल ये वाला चारों ओर से इक्वल था, नो प्रॉब्लम. बट जैसे ही वो इस तरफ जाएगा, कि दीवार को मारने वाला, कंटेनर की दीवार को, उससे पहले अभी देखो उसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तुमने आप देखिए इसके पास अट्रैक्ट करने वाले एक ही साइड से. You know there are certain games जहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिलता है. जैसे कि इन अल्फा वन मोर देयर इज वन गेम जहाँ पे वो बॉक्सिंग ग्लव्स लगे हुए हैं और आपको एक्चुअली ये बॉल लगा हुआ है और आपको जितना जोर से मारो उतना जोर से मारिए उसको.
और उसके पॉइंट्स मिलते हैं। अब जितनी ताकत से मारोगे तो वो काउंट करता है कि आपने कितनी ताकत से मारो, उसके हिसाब से बोल जाएगा एंड इट काउंट्स इट। आप सर्टेन पॉइंट में ज्यादा स्कोर करते तो आपको क्या मिलता है, सर्टेन टिकट्स एंड व्हाट यू गेट योर रिवॉर्ड। But this one is again, you're supposed to hit with full flow, जितना मार दो तो लोग कहीं तो दौड़ के आके ऐसे मारते हैं। ओके ना, जरा ध्यान से देखिए, आगे दो केसेस। एक केस है वो बंदा दौड़ के आके मार रहा है और उसके जो पॉइंट्स होंगे वो वहां पे काउंट हो रहा है। अब दूसरा केस है ऐसे मारने जा रहा है, पीछे उसका दोस्त उसको खींच देगा, फिर भी मारता है लेकिन क्या उतने ही पॉइंट आएंगे। ऐसा ही केस यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, आप काफी अच्छी तरीके से समझते। जब when what is pressure by गैस का प्रेशर क्या होता है? We know when any molecule hits on the container, it produces force on that wall, correct? Container की wall पे, and that force per unit area, force per area we call it pressure. And जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब ये इक्वेशन यूज करते हैं कोई भी गैस के लिए, हम ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन कि इसको कोई पकड़ने वाला है ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा। तो जब हमारा कैलकुलेशन है वो पूरे फोर्स से उसको मार रहा है, ऐसा कैलकुलेशन हम ऐसे कैलकुलेट करके इसको इक्वेशन को यूज करते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। जब वो मारने जा रहा है तो उसको पकड़ने वाले 3-4 है। सो क्या वो उतने ही इंपैक्ट से इसको मारेगा? नहीं मारेगा, तो उसको पकड़ और ऊपर से एक ही साइड से पकड़ा जा रहा है। सो इसका जो एक्चुअल प्रेशर है वो कम, इट इज लेस। ओके, जब हमने एजम्पशन ऐसा लिया था कि देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये अट्रैक्ट करता ही नहीं, सपोज ये अट्रैक्ट नहीं करता है तो वो तो आराम से मार देता, पूरा फोर्स से आता। बट एक्चुअली देयर इज एन अट्रैक्शन, सो दैट्स व्हाई जो आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो वो तो कम कैलकुलेट कर रहे हो। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट, एक्चुअल प्रेशर अलग है। ओके, तो हम थियोरेटिकली ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, थियोरेटिकली ऐसा गिनते हैं कि विदाउट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हिट कर रहा है और एक्चुअली उससे वो कम है। तो इसकी इफेक्ट कम करने पर प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। प्रेशर में प्रॉब्लम हो गया बिकॉज दे आर कंसिडरिंग व्हाट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेट अस सी, ध्यान से पढ़ाई करते हैं। आई थिंक सो मैं यहाँ पे नीचे तक पढ़ा चुका हूँ। यस, ओके, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। Now if okay, assumption 2 is correct, assumption 2 पे बात करना, पहले assumption first की बात करते हैं। Now if the force of attraction existing between the gaseous molecule as is shown in the diagram, then any molecules in the middle of the container have force of attraction evenly by the neighboring molecules. You can see that it is even in this, sorry, it is even in this, correct? Okay. Okay, second thing. Now molecules okay. Now molecules when move towards the wall of container, I'm talking about this container, and ready to hit the wall means they are ready to touch the wall of container. At that time, as shown in diagram, the molecules have resultant force of attraction. You can say this is the resultant force of attraction. So it does not become zero. Since it does not become zero, it tries to pull the molecule in the other direction. So thus, with the inward force of attraction, resistance is created on striking the molecules with the wall. So the measured and real pressure is less than the ideal pressure. So to obtain, तो आपके पास जो ideal pressure से फिर measured pressure थोड़ा कम होगा. So to obtain ideal pressure, some correction is required in measured pressure. Measured pressure के अंदर आपको थोड़ा सा add करना. Something needs to be added. Such suggestion was given by Mr. Van der Waal. Okay. And
ही से टोटल प्रेशर, नॉर्मली जो प्रेशर होगा, क्योंकि हम तो एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, एक्चुअली एक मॉलिक्यूल थोड़ा हीट करने वाला है, काफी सारे मॉलिक्यूल हीट करने वाले हैं, तो जितना हमको करेक्शन करना है सब मॉलिक्यूल्स के लिए करना पड़ेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा उतना करेक्शन ज्यादा। ओके, बाय द वे जो प्रेशर होता है ऐसे फोर्स पर एरिया, तो उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड होता है। तो जो ये फोर्स हो रहा है या प्रेशर जो हो रहा है, हमारी बुक बता रही है, he said the total pressure varies inversely, varies directly to square of density. Total pressure जो हमको चेंज करना है is varies directly to square of density and inversely varies with the square of its volume. जितना डेंसिटी ज्यादा है उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा मानेंगे, मतलब वो जो प्रेशर का करेक्शन है उतना ज्यादा करना पड़ेगा, डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी। और जितना वॉल्यूम ज्यादा है उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, so it's inversely to the square of volume. So for any gas the ideal pressure value is equal to the sum of real pressure and n square by v square. आइडियल प्रेशर कितना हो जाएगा जो आप रियल मेजर करते हो प्लस आपको ये करेक्शन करना जरूरी है, जहां पे a जो है वो कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या तो मोल्स ऑफ गैस है, एंड v इज द वॉल्यूम। बराबर है कि नहीं? ये करेक्शन करना जरूरी है, ये करेक्शन करोगे तो ही बराबर है। पहला सेकंड करेक्शन, उनका तो सेकंड एजम्पशन था जो रॉन्ग था, पहला एजम्पशन रॉन्ग मैंने बताया आपको, सेकंड एजम्पशन क्या रॉन्ग था? द वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। उन्होंने ऐसा बताया जब हम गैस का वॉल्यूम मेंशन करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं मालूम है, ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। वो बोलते हैं कि इसके जो आपके पास मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसको नेग्लिजिबल कंसीडर। मैं आपको समझाना चाहता हूं। ओके, सपोज ये पूरा जो रूम है खाली है, देयर इज नो फर्नीचर, ओनली 4 क्रॉस वॉल्स, ओके, बराबर है, नथिंग एल्स। एंड सपोज मैं हंसला को बोलता हूँ कि रूम के अंदर आपको दौड़ना है, तो उसके लिए वॉल्यूम कितना मिलेगा? जितना है पूरा रूम उतना ही उसके लिए अवेलेबल, बराबर में पूरा रखना। अभी चुपके से बाकी मैं 2 स्टूडेंट को यहाँ पे खड़ा करता हूँ और उसको बोलता हूँ वो तो उनका वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, ऐसा तो नहीं मतलब मेरे लिए उतना ही वॉल्यूम अवेलेबल है दौड़ने के लिए। सपोज 2 को वो इग्नोर कर दिया, 10 डाल वो कभी भी इग्नोर कर, 50 डालिए तो कभी भी इग्नोर कर। क्या आप हंसला को हर बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से उनको उतना ही वॉल्यूम मिलता? कैन बी इग्नोर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्टूडेंट? वी कांट इग्नोर दैट। Those students, they have their own volume. So because the number of students increases, he gets less and less volume to run around. Am I right? Are you following that? तो actually ऐसा ही है। Okay, suppose हमारे पास यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, let's say that, ना इसको पूरा घूमने को मिलता पूरा का पूरा वॉल्यूम, बट वो अकेला मॉलिक्यूल कहाँ है वहां पे? ओके, जब गैस के मॉलिक्यूल लेते हो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसको इतना वॉल्यूम कम मिल रहा है घूमने के लिए। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मालूम क्या करते हैं, भाई ये गैस का वॉल्यूम जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही है, उतना नहीं है, उसमें से जितना वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया है वो सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। करेक्ट or not? So that was the second point which they said wrong. The volume of molecules is negligible. It's not negligible. That was the second point which we want to study. Now यहाँ पे आएंगे। अच्छा, पहले ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, सेकंड वन। Now if assumption 2 is correct, then the theoretical and experimental graphs of volume and pressure will be same. अगर उन्होंने जो assumption ले रखा है वॉल्यूम इतना ही है, तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम का जो बोयल्स लॉ के ग्राफ मिले थे वो सेम मिलने चाहिए थे, एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरिटिकल, वो नहीं मिल रहे। दैट मींस देयर इज सम डेविएशन।
That means there is some correction. What is that correction? मैं आपको सिखाया, okay? डिटेल में भी सिखा रहा हूँ. Now, if the volume of the gas molecule is taken into consideration, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी आपको कंसीडर करना है, then the total volume occupied by the gas molecule, जितने गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, that is not available for the motion of this molecule, वो उनके लिए नहीं मिलेगा, तो किसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है. So to obtain effective or ideal volume, okay, the volume occupied by the molecule is to be subtracted from the measured volume of the gas, and thus the volume occupied by the n moles of gas is nearly nB. We need to subtract that. B is constant and n is the number of moles. जितने मोल ज्यादा उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज्यादा उतना सब्ट्रैक्ट करना है. Where B is constant, which is subtracted from total volume. This correction is made in the ideal gas equation. So the gas equation theta is what. Okay, तो आपके पास नया इक्वेशन आया. This equation P plus n square upon n square, B minus B equal to nothing. This equation is known as van der Waals equation, where A and B are constant and they are depend on the characteristic of gas. हर एक gas के लिए अलग रहेगा. The constant A indicates, A क्या बताएगा? Measurement of the intermolecular force of gas, which is free from the effect of temperature and pressure. Is it fine? At very low temperature, अच्छा, तो यहां तक प्रेशर पे कैसे इफेक्ट हो रही है, दो एग्जाम्पल से मैंने आपको सिखाया. Till here, I taught you कि प्रेशर पे कैसे इफेक्ट हो रही थी, वॉल्यूम नहीं हो, पर टेम्परेचर पे क्यों इफेक्ट आ रही है, वो तो अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो डिस्कस कर लेते, छोटा सा ही करेगा. एक्चुअली टेम्परेचर पे क्यों इफेक्ट नहीं आ रही, मतलब एट वेरी लो टेम्परेचर, वी नो हाई टेम्परेचर पे गैस बिहेव्स आइडियली, करेक्ट है ना? हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियली बिहेव करे तो लो टेम्परेचर पे क्यों नहीं? जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज मेरे पास ये दो मैग्नेट है, दिखाया तो मैग्नेट, ओके, एंड वी नो अगर मैग्नेट को आप नजदीक लेके आते तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, अगर ऑपोजिट पोल्स, कंसीडरिंग दैट वी आर ब्रिंगिंग ऑपोजिट, एंड वी हैव डन दिस, आप लोग काफी बार खेलते हैं, ओके. तो जब एक दूसरे को नजदीक लेके आते हैं, स्लोली लेके आओगे, टेक इट अट्रैक्ट, but try to do it very fast, very fast. You will see they will not attract each other when they are moving at a very fast speed, because उनकी एंटी इतनी सारी जो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करेंगे, वो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करेंगे. जब लो टेम्परेचर होता है ना, तब जब लो टेम्परेचर होता है, तब ये जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो, ओके, उनकी स्पीड भी काफी स्लो होगी. उनकी लो टेम्परेचर पे लास्ट टाइम सिखाया जाना, उनकी अगर मोशन कम होती है, तो सिंस वो काफी स्लोली जा रहे हैं, तो स्लोली जाने से उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इट इज ओके प्रीवेलिंग, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स काम, ओके, इम्पैक्ट आपको डिविएशन दिखाता है, बिकॉज देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स. बट व्हेन दे आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, व्हेन आई सेड हाई स्पीड, that is possible when the temperature is high. तो temperature high है तब उसका speed कैसे है, high, and when they are moving with काफी speed से घूमेंगे, तो दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, okay, attraction force negligible हो जाता है, then it becomes negligible. That's why high temperature पे there is no ideal behavior, because high temperature there is no force of attraction, so there is no deviation. At low temperature force of attraction existing, that's why deviation. बराबर है क्या नहीं, आपको समझ में आ रहा है? At very low temperature, the intermolecular attractive forces become significant. When molecules are moving with low average velocity, due to this force of attraction, the molecules are pulled towards each other, and hence it creates resistance in tracking with the wall of fluid. Due to this, measured value of pressure is less than the ideal pressure. So it is said that behavior of real gas is ideal when intermolecular forces are such that it becomes practically negligible. अगर intermolecular forces negligible बनते हैं, then behavior of ideal gas आपको देखने को मिलता है. इसीलिए high temperature and low pressure, low pressure में भी मॉलिक्यूल नजदीक में नहीं होंगे. प्रेशर हाई करोगे तो मॉलिक्यूल नजदीक में आ जाते हैं, तो वापिस ओके, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है.
Are you following this?